Hello students, I am Dr. Harinder Singh. I welcome you all. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करी थी. इन टुडेज वीडियो वी गोना डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज ए साइंस एंड मैनेजमेंट एज एन आर्ट, प्लस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट प्लस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ये सब डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. वी गोना स्टार्ट विद द पॉइंट्स. 10 पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंस के, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. सी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन plays a vital role in deciding what they want to do in their business, and it is the duty of manager to get maximum results with minimum resources. So management generally helps to maintain a proper balance between objectives and priorities, and that's why management helps the organization to set their goals and objectives. Second point is generates employment opportunities. This is one of the important points because जब आप organization को run करते हो, you need people who can work for you, and in that manner management is providing employment opportunities to a lot of people. They can work in marketing, production, HR, finance, so that many organization needs a lot of people. So that's why management is helpful in providing employment opportunities or generating employment opportunities. Third point is attaining your objectives. This is also a very important point. Management is not only about setting the objectives, but their main task is to achieve those objectives. So management generally plans, organize, directs and controls the organizational activities and resources for the purpose of achieving their objectives. So management क्या करता है कि management अपनी activities को ऐसे plan करता है, organize करता है, direct करता है ताकि वो organization के objectives को achieve कर सके. Next point आता है effective utilization of resources. See, effective utilization of resources means that we should use the resources judiciously. As we have discussed earlier in this video, that every organization wants to achieve maximum results with minimum resources. So किस प्रकार आप अपने resources को use करते हो, कम resources को use करके आप maximum output को achieve करते हो, उसमें आपको management help करता है. So management helps you in effective utilization of resources. ये resources कुछ भी हो सकते हैं, whether your financial resources, human resources, material resources. Now we comes to next point. It helps in decision making. Management decision making में भी help करता है because day to day routine में management को बहुत से decisions लेने पड़ते हैं. कुछ difficult decisions भी लेने पड़ते हैं, कुछ crucial decisions लेने पड़ते हैं. So it helps and it gives the clarity to the organization कि कौन से decisions उनके लिए बहुत vital हैं, किन पे उनको पहले फोकस करना है, किन पे उनको अभी फोकस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को डिसीजन मेकिंग में कि कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन से डिसीजंस को लेना है ताकि वो राइट डिसीजंस को लें ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन आगे की तरफ बढ़ सके. नेक्स्ट पॉइंट आता है ओवरकमिंग कॉम्पिटिशन. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज वी ऑल नो देयर इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, किसी भी फील्ड में हो. सो कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर्स को फेस करोगे, कैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाओगे, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. ऑर्गेनाइजेशंस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती अगर वो अपने कॉम्पिटिटर को इग्नोर करेंगी. कंपटीशन को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते. सो मैनेजमेंट हेल्प करता है आपको ऐसी टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करने में, इम्प्लीमेंट करने में, ताकि आप अपने कंपटीशन से हमेशा आगे रहो. इसका बहुत परफेक्ट एग्जांपल है जियो का एग्जांपल. जियो टेलीकॉम सेक्टर में सबसे लास्ट में आया था, बट आज जियो के पास सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं,
जियो एक नंबर 1 हम कह सकते हैं टेलीकॉम कंपनी बन गई है इंडिया की। रीज़न बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रैटेजीज। और ये स्ट्रैटेजीज कहाँ से आई? मैनेजमेंट ने उनको सिखाई कि किस प्रकार उनको स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करना है, यूटिलाइज करना है, लगाना है, ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जा सकें और कंपटीशन को फेस कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिएटिंग साउंड ऑर्गेनाइजेशन। सी क्रिएटिंग साउंड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स there should be proper allocation of resources in each and every department and there should be proper work environment, proper rules regulations follow हो। और मैनेजमेंट हेल्प करता है कि आप डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकें ऑर्गेनाइजेशन में, हर एम्प्लॉय को प्रॉपरली ट्रीट करें और हर डिपार्टमेंट में इक्वल रिसोर्सेज पहुंचें, तभी एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो मैनेजमेंट की टेक्निक्स हेल्प करती हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को साउंड ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करे, क्योंकि हम सबको पता है बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट मेकिंग एंड प्रॉफिट्स को जनरेट करने के लिए आपको प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक्स प्रोडक्टिविटी फैक्टर था, अब वो चाहेंगे कि हम उससे भी बेटर करें आने वाले टाइम में। सो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनको और एफर्ट्स करने पड़ेंगे और कोशिश करनी पड़ेगी ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सके। उसके लिए उनको अपने रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज करना पड़ेगा और रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के साथ साथ सही तरीके से प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है बहुत से लोगों को, प्लस वो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के थ्रू इंडिया के बाहर भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, तो ओवरऑल इकोनॉमी में बूस्ट मिलता है। और जब ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में बूस्ट आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी में भी कंट्रीब्यूट करेगा। सो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं हेल्प करता है कि वो हमारे देश की प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट करता है इन अ पॉजिटिव मैनर। लास्ट पॉइंट आता है इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुडविल क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल होती है द वे द पार्टीज रिलेटेड टू बिजनेस व्यूज योर ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज रिलेटेड टू योर मेन शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, कस्टमर्स। सो किस प्रकार मैनेजमेंट की टेक्निक्स आपको हेल्प करती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज एक पॉजिटिव इमेज बने इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, ताकि आपकी एक पॉजिटिव इमेज बनेगी तो आपको बिजनेस जनरेट करने में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आपके रिलेशन कॉर्डियल होंगे, प्लस आपका प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा बिकेगा। इसका प्राइम एग्जाम्पल है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप इज हैविंग अ वेरी पॉजिटिव गुडविल इन द इंडियन मार्केट। दिस इज द रियलिटी। और मैनेजमेंट की टेक्निक्स हेल्प करती हैं आपको कि किस प्रकार आप अपनी गुडविल को बिल्ड कर सकते हो। ये थे इंपॉर्टेंस का टॉपिक। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैनेजमेंट एज ए साइंस एंड मैनेजमेंट एज एन आर्ट। See, management is a combination of both science and arts. It is science because it is found upon the systematic body of knowledge and principles developed by the scientific analysis. It is an art because application of knowledge and skill is essential for managing the affairs of any organization. See, management science भी है, arts भी है. अब science क्यों है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं. बिकॉज जितने भी मैनेजमेंट कंसेप्ट हैं मोस्टली वो जो कंसेप्ट डेवलप हुए हैं वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के उन्हीं से डेवलप किए गए हैं. उनका साइंटिफिक एनालिसिस किया गया है, उसके बाद उनको डेवलप किया गया है. मैनेजमेंट आर्ट भी है. क्यों है? क्योंकि हर इंसान, हर ऑर्गेनाइजेशन तथा हर कंट्री के अंदर लोगों का सोचने का प्रोसेस और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का तरीका अलग है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आर्ट्स, बिकॉज आप इसको अप्लाई करते हो. हर ऑर्गेनाइजेशन इसको अपने तरीके से, अपने ढंग से अप्लाई करती है. दैट्स व्हाई मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट्स भी है. नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे 3 होते हैं: टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट. पहले हम बात करेंगे
टॉप लेवल मैनेजमेंट की। इसके अंदर आते हैं हमारे जनरली CEO, COO, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है? दे आर द मेन पीपल हु बिल्ड्स द ओवरऑल पॉलिसीज और पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेन प्लानिंग टॉप लेवल पे की जाती है। फिर आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल इज द लिंक बिटवीन द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स और डिविजनल हेड्स होते हैं इसके अंदर। इनका काम क्या होता है? जो भी पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई है उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का काम हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। लास्ट आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसके अंदर जनरली होते हैं फोरमैन्स एंड सुपरवाइजर्स एंड दे जनरली सुपरवाइज द एफर्ट्स ऑफ वर्कर्स। ये क्या करते हैं? मेन काम करते हैं लोअर लेवल के जो फोरमैन और सुपरवाइजर्स होते हैं, ये जो वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन में काम करते हैं, उनके वर्क को सुपरवाइज करते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? जो भी इंस्ट्रक्शंस इनको मिडिल लेवल से मिलते हैं, दे पास दीज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मिडिल लेवल टू दीज वर्कर्स। ये होते हैं हमारे 3 लेवल, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मेन जनरली 5 होते हैं जो मेन जनरल फंक्शंस माने गए हैं। पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट। कि किस प्रकार आप काम करोगे, कौन करेगा, ये है प्लानिंग। प्लानिंग में पहले आप सोचते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, आपका विजन क्या है, मिशन क्या है, आप उसे डिसाइड करते हो और फिर आप अपनी प्लानिंग करते हो। सेकंड आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है इट इज अबाउट असाइनिंग टास्क एंड ड्यूटीज प्लस establishing the relationship between the people working in the organization and allocating the resources to carry out the plans of the organization. Organizing के अंदर आप क्या करते हो? लोगों को जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग, उनको आप उनके टास्क ड्यूटी समझाते हो, उनके आपस में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हो, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कैसे काम करेगा, प्लस आप रिसोर्सेज को अलोकेट करते हो ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम ढंग से हो सके। थर्ड आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। इसके अंदर आप क्या करते हो? स्टाफिंग बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। हम जितने भी फंक्शंस पढ़ रहे हैं इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे आने वाली यूट्यूब वीडियोस में। प्लानिंग पे मेरी एक पूरी वीडियो आएगी, ऑर्गेनाइजिंग पे भी पूरी वीडियो आएगी, स्टाफिंग पे भी आएगी और बाकी 2 जो हैं डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, उन पर भी आएगी। तो स्टाफिंग है, स्टाफिंग के अंदर क्या होता है? आपका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग, ये 4 चीजें होती हैं जो HR रिलेटेड होती हैं। पहले आप रिक्रूटमेंट करते हो, फिर आप सिलेक्शन करते हो, फिर आप ट्रेनिंग करते हो, फिर प्लेसमेंट करते हो, एम्प्लॉयज को आप प्लेस करते हो जॉब्स पे। ठीक है। फोर्थ आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज ऑल अबाउट लीडिंग दी employees working in the organization, influencing them, motivating them so that they can perform their task. And इसके लिए इफेक्टिव लीडरशिप होनी बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टिंग का प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें आप लोगों को समझाते हो किस प्रकार वो ऑर्गेनाइजेशन का काम करेंगे तो उनको भी उससे फ़ायदा होगा, उनको आप मोटिवेट करते हो, उनके साथ प्रॉपर एक कम्युनिकेशन मेंटेन करके चलते हो ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का काम ढंग से मैनेज कर सकें। और लास्ट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज ऑल अबाउट मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सी हमने स्टार्टिंग से डिस्कस किया था जब इंपॉर्टेंस डिस्कस करी थी कि पहला काम क्या होता है, पहली इंपॉर्टेंस क्या है, दैट इज सेटिंग ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जब हमने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बना दिए, अब हम उन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, अकम्प्लिश करने की कोशिश करते हैं, अटेन करने की कोशिश करते हैं। जब हम गोल्स को अटेन करने की कोशिश करते हैं, ऑब्वियसली हर बार जो हम गोल्स बनाते हैं वो 100% हम अचीव नहीं कर पाते हैं। सो कंट्रोलिंग की टेक्निक हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि किस प्रकार वो जो उन्होंने गोल्स बनाए थे, ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, उनको 100% अचीव कर सकें। अगर कोई डेविएशन आया है, जो गोल्स की तरफ हम जा रहे थे, हम डेविएट हो गए उससे, तो हम करेक्टिव मेजर्स ले सकें ताकि हम अपने गोल्स को फुलफिल कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के
और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिल सके। ये था आपका टॉपिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये थी आज की वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी गोना डिस्कस द सेकंड चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज। अगर आप कोई और चैप्टर या टॉपिक के बारे में भी डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज वीडियो।